Good morning, dear students. Now, in today's lecture, we will explain about the detail in surface chemistry. In last lecture, we have studied very important information about the definition of surface chemistry, their examples of surface chemistry, and some important phenomena for the obtaining or representation of interface. Now, if we want to study detail about surface chemistry, then how can we gain the surface? That is very important question. Just see, in order to study surface phenomena, ultra clean surface is necessary. That is very important point, that if we want to study about the surface phenomena, ultra clean surface is necessary. But how can we get ultra clean surface? That is very important question. So at very high vacuum, the ratio is 10 raised to 8 to 10 raised to minus 9 Pascal. Such a material is stored to prevent it from air, molecule of air. That is ultra clean surface. डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें अल्ट्रा क्लीन सरफेस करनी है तो हमें ज्यादा से ज्यादा वैक्यूम पर जाना पड़ेगा. सो वैक्यूम पंप पे कोई भी अगर हमारे पास गैस ट्यूब हो, उसमें से एयर के मॉलिक्यूल अगर हम बाहर खींच लेते हैं और उसका प्रेशर 10⁻⁸ टू 10⁻⁹ पास्कल जितना कर देते हैं, तो हमें अल्ट्रा क्लीन सरफेस मिलेगी. ताकि अभी हम जो यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं उस स्टडी में हमारा बेस थोड़ा आसान हो जाएगा कि किस तरीके से हमको ये कॉन्सेप्ट आ रहा है, और सरफेस का जो स्टडी है थोड़ा इजी हो जाएगा. सो हाउ कैन वी गेन सरफेस? सो अल्ट्रा क्लीन सरफेस इज नेसेसरी. सो एट अ वेरी हाई वैक्यूम 10⁻⁸ to 10⁻⁹ Pascal, such a material is stored to prevent it from molecules of the air. So this is the basical point, that how will you obtain ultra clean surface of the metals. So again, this is ultra clean surface. Okay, the next important point is here, that is we will explain our important phenomena, adsorption. So the question arises in our mind that what is this adsorption and what is the basic need of this adsorption. Okay, just see, I will explain you different examples of adsorption, then we will explain adsorption. But first of all, examples of adsorption. Just see, when a gas like O2, H2, CO, Cl2, NH3, SO2 taken in a closed vessel, containing चारकोल. एक वेसल में हमने चारकोल रखा हुआ है और उस वेसल में हम ये गैस अंदर एंटर कर रहे हैं, जस्ट लाइक Cl2, H2O2, N2, NH3, SO2, ये हम ऐड कर रहे हैं. देखिए तो क्या हो रहा है इसमें, द प्रेशर of the gas
will decrease। देखिए एडसॉर्प्शन के फिनोमिना क्या हो रहे हैं यहाँ पर। अगर मैं चारकोल कंटेनिंग वेसल में दिस टाइप ऑफ गैसेस अंदर रख रहा हूं तो अपने आप ही उसका प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि रीजन गैस मॉलिक्यूल्स get adsorbs on the surface of charcoal। ये आपके सामने पहला एग्जाम्पल यहां पर आ रहा है कि वहां प्रेशर क्यों डिक्रीज हो रहा है। प्रेशर डिक्रीज हो रहा है उसका रीजन है गैस मॉलिक्यूल एडसॉर्ब हो रहे हैं सरफेस ऑफ चारकोल पे। ठीक है, ये पहला एग्जांपल एडसॉर्प्शन का। ये क्यों हो रहा है और इस एडसॉर्प्शन की फिनोमिना को अगर मैं डिफाइन करना है तो हम किस तरीके से कर सकेंगे, ये हम सोचते ही रहेंगे और ये सोचने ही वाले हैं। और ये दूसरा भी आपके सामने मैं यहाँ पर एग्जांपल देने जा रहा हूं एडसॉर्प्शन का। देखिए, इफ एनिमल चारकोल is added in a solution of methylene blue, it turns into colorless। देख रहे हैं यहाँ पर ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हो रहा है, अगर मेरे पास ऑर्गेनिक डाई है जस्ट लाइक इस मिथिलीन ब्लू, अगर इस मिथिलीन ब्लू को हम चारकोल में ऐड करते हैं तो मिथिलीन ब्लू का जो कलर है वो धीरे धीरे टर्न हो रहा है और टर्न इनटू कलरलेस बिकॉज molecule of the dye adsorbed on the surface of charcoal। Same third example, if I will take yellow sugar, impure sugar is in a yellow color, yellow sugar solution is added into a water, color becomes yellow, and when we add charcoal in it, again color will change from yellow to colorless। This is the third example of adsorption। आप समझ रहे हैं, मैं आपको एडसॉर्प्शन के डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स यहाँ पर सोल्व करवा रहा हूँ कि अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन जैसे गैसेस चारकोल में ऐड होते हैं तो उनका प्रेशर डाउन हो रहा है, मिथिलीन ब्लू जैसी ऑर्गेनिक डाई का कलर चेंज हो रहा है, येलो शुगर का येलो कलर चेंज हो रहा है ड्यू टू चारकोल इफेक्ट। दिस आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ एडसॉर्प्शन। ओके, चलिए, तो ये एडसॉर्प्शन के मैंने आपके सामने एग्जाम्पल्स यहाँ पर रखे हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, एक्सप्लेन और गिव द एग्जाम्पल्स ऑफ एडसॉर्प्शन। चलिए, अभी मैं आपको समझा रहा हूं कि एडसॉर्प्शन की फिनोमिना होती क्या है। ओके, चलिए, तो अभी हम एक्सप्लेन करते हैं एडसॉर्प्शन को डिटेल में। चलिए, अभी हमारा क्वेश्चन आ रहा है, ये हमारा क्वेश्चन एक्सप्लेन एडसॉर्प्शन। ऐसा क्यों हो रहा है, अगर हम ये एक्सप्लेन करेंगे तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगी एडसॉर्प्शन की डेफिनेशन। देखिए, आप सबके सामने मैं एक बहुत ही बेहतरीन यहां पर एग्जाम्पल रख रहा हूं। चलिए, मेरे पास
यहाँ पर ये जो येलो शुगर वाली मैंने बात की थी ना, ये येलो शुगर का सॉल्यूशन है। वाटर हमने ऐड कर दिया है येलो शुगर में और ये सॉल्यूशन हो गया है येलो कलर का। ओके, इसको बोलते हैं एडसॉर्बेट। इसको क्या बोलते हैं? एडसॉर्बेट। कि जिस सॉल्यूशन का कलर चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं एडसॉर्बेट। ओके, चलिए अभी इसमें क्या है देखिए, थोड़ी इसकी मैं कैरेक्टरिस्टिक के साथ यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये इनसाइड मॉलिक्यूल है और ये सरफेस मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल और ये इनसाइड मॉलिक्यूल। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन inside molecule and surface molecule? Just see, inside the bulk of the adsorbate, all the forces acting between the particles are mutually balanced। देखिए यहाँ पर अंदर की साइड जो भी फोर्स है वो सभी साइड से एक ही तरह का फोर्स यहाँ पर लग रहा है। अंदर की साइड में जो भी फोर्स है वो सभी साइड का फोर्स किस तरीके का है? एक ही तरीके का फोर्स हमें दिख रहा है। ऊपर भी शुगर के मॉलिक्यूल, नीचे भी शुगर के मॉलिक्यूल, साइड में भी मॉलिक्यूल, लेफ्ट साइड भी मॉलिक्यूल, राइट साइड भी मॉलिक्यूल। अंदर की साइड, इन साइड में सभी एरिया में फोर्स यहाँ पर क्रिएट हो रहा है क्योंकि इनसाइड एरिया सभी एक ही तरीके के मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है। अगर हम बात करते हैं सरफेस एरिया की, तो देखिए सरफेस एरिया में जो फोर्स है वो नीचे की तरफ है और जो फोर्स है वो बाजू की तरफ अप्लाई हो रहा है। ऊपर का जो एरिया है वो पूरा खाली यहाँ पर लग रहा है क्योंकि ऊपर तो वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में यहाँ पर है। सो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो इनसाइड एरिया है वो सभी तरह के एक ही मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है और जो सरफेस एरिया है वो सिर्फ नीचे और बाजुओं की तरफ ही गिरा हुआ है। सो वी विल एक्सप्लेन दिस बाय द वर्ड्स। जस्ट सी, इनसाइड द बल्क ऑफ एडसॉर्बेट हैविंग सेम interactive force, the same interactive force, because in all the sides particles are mutually balanced. This is the inside, the bulk of the adsorbate. Now the second important point, while in surface area molecules are attracted in below sides and below end sides because surface is in contact with air. See, this is the basic and second difference between the surface area and the inside area. So inside area having the same interactive force while surface area having unbalanced interactive force. So we can say that, so surface area is not balanced area. सरफेस एरिया इज नॉट बैलेंस एरिया। देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी ये जो येलो कलर का शुगर का सॉल्यूशन है उसको मैं कांटेक्ट में यहां पर लेकर आ रहा हूं चारकोल से। ये है येलो शुगर सॉल्यूशन, येलो शुगर सॉल्यूशन, और यहां पर मैं रख रहा हूं चारकोल। जो ऊपर रख रहा हूं
उसको बोलते हैं एडसॉर्बेंट। क्या बोलते हैं इसको? एडसॉर्बेंट बोलते हैं। चलिए, अभी जब मैं यहाँ पर चारकोल रख रहा हूं ना, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सरफेस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनर साइड, नाउ इट इज नॉट ऑन द सेम पोजीशन। अभी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है। अभी देखिए, मैं यहाँ पर आपको ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बता रहा हूं कि एक्चुअली ये यहाँ पर क्या हो रहा है। सो द पॉइंट इज हियर दैट द concentration of surface area is higher than inside the bulk। देखिए यहाँ पर जो इनर एरिया यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसका इनर एरिया का कॉन्सेंट्रेशन से सरफेस एरिया का कॉन्सेंट्रेशन अभी बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि जो इनर साइड का सॉल्यूशन वो सभी साइड एक ही तरीके के सॉल्यूशन से घिरा हुआ है, बट जो सरफेस एरिया वाला वो नीचे और बाजुओं की साइड अपने ही तरीके का सॉल्यूशन से घिरा हुआ है, पर ऊपर चारकोल आ गया है। तो सरफेस एरिया का कॉन्सेंट्रेशन इनर एरिया से ज्यादा हो रहा है। सो द कलर ऑफ sugar will remove and it will convert into colorless. So the concentration of surface area is higher than inside the bulk, so color will remove. This phenomena is known as adsorption. This is the proper definition of adsorption, that what is adsorption. So the phenomena of attracting and retaining the molecules of a substance on the surface is known as adsorption। समझ रहे हैं आप? यहाँ पर जो चारकोल हमने रखा है वो चारकोल सरफेस एरिया पर रिटेन होगा, और रिटेन होने के बाद इसका सिर्फ कलर ही रिमूव करेगा। सो रिमूवल ऑफ द कलर इज नोन एज एडसॉर्प्शन। और ये क्यों हो रहा है उसके लिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे रहा हूं। देखिए, इसका कॉन्सेंट्रेशन लोअर है, इसका कॉन्सेंट्रेशन हायर है। आपको ऑस्मोसिस याद है? ऑस्मोसिस में क्या होता है? लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ एक्सप्लोजन शुरू हो रहा है। लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर फ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर यही हो रहा है। ये है लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये है हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो चारकोल का जो सरफेस एरिया है इस लोअर कॉन्सेंट्रेशन के कलर को रिमूव कर रहा है। सो दिस फिनोमिना इज सिमिलर टू ऑस्मोसिस ऑल्सो। दिस इज एडसॉर्प्शन प्रोसेस। इज इट क्लियर टू ऑल? इसको बोलते हैं एडसॉर्प्शन की प्रोसेस। ये हमारे सामने एडसॉर्प्शन यहाँ पर आ रहा है। इसको बोलते हैं एडसॉर्बेट, इसको बोलते हैं एडसॉर्बेंट, और ये पूरा जो यहाँ पर फिनोमिना हो रहा है उसको एडसॉर्बेंट इस तरीके से बोलते हैं। सो दिस आर द प्रॉपर वे टू एक्सप्लेन एडसॉर्प्शन। ओके, सो दिस इज एडसॉर्प्शन प्रोसेस। अभी मैं आपको ऐसा बोलता हूं, ये जो शुगर है ना, अगर उसमें हम वाटर ऐड करते हैं और शुगर का सॉल्यूशन बनता है, देखिएगा, शुगर प्लस वाटर, इसको बोलते हैं एब्सॉर्प्शन। शुगर और वाटर का सॉल्यूशन यहां पर होता है, उसको एब्सॉर्प्शन बोलते हैं। शुगर प्लस वाटर प्लस चारकोल, इसको बोलते हैं एडसॉर्प्शन। इज इट क्लियर? शुगर और वाटर को बोलते हैं एब्सॉर्प्शन। शुगर, वाटर और चारकोल जब तीनों मिक्स होके कलर रिमूव होता है उसको बोलते हैं एडसॉर्प्शन। सो दिस आर द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द एडसॉर्प्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए हम इतनी ही इंफॉर्मेशन सामने रख रहे हैं। आगे जाके अभी थोड़े डिटेल में हम एडसॉर्प्शन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ओके, सो टिल नाउ टुडेज के लेक्चर के लिए हम इतनी ही इंफॉर्मेशन रख रहे हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर टुडेज लेक्चर।